Assalamu alaikum students. We are into our fourth recorded lesson जो एक वीक में हमारी ड्यू है for the Thursday. Um, this will be a question practice session. We have done almost all the theory concept necessary for the IGCSE related to momentum. Now we are going to continue with our question exercise. Here we have question IGCSE November 18. It says that the velocity of an object of mass m increases from u to v. State in terms of mass, initial speed, final speed, the change of momentum of the object. So basically he is asking for the formula. So let's go with it. हमारे पास चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल और इनिशियल माइनस फाइनल. हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है तो हमने खाली फिजिकल क्वांटिटी, और ये उसकी रिक्वायरमेंट भी है कि राइट डाउन द आंसर विच इंक्लूड्स द टर्म और द फिजिकल क्वांटिटी मास, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. सो लेट्स राइट इट एज change in momentum that is equal to mv minus mu. It includes mass, it includes initial, it includes final velocity. So we are done with this. In a game of tennis, a player hits a stationary ball with his racket. Stationary ball means if later on in the question he asks for momentum, initial momentum, the initial momentum of the ball will be zero because initial speed of the ball is zero. The racket is in contact with 6.0 millisecond. Many students ignores this m and they think that it's a misprint of meter per second. No, time is this is the time basically, और ये बनता है 6.0 into 10 to the raised power minus 3 second. Milli stands for 10 to the raised power minus 3. The average force on the ball is 400 Newton. If the force is given and the time is given, we can find the impulse. Now impulse is equal to F into T. F is 400. Time is 6 into 10 to the raised power 3 का मतलब होता है 0.006. So use our calculator. 400 into 0.006, that gives us 2.4 Newton second. That is our impulse. Okay, write it down here, 2.4 Newton second. The mass of the ball is 0.05 kg. Calculate the speed with which the ball leaves the racket. Now normally it's basically a hack. The question has a continuity. You can use the concept of impulse, the previous part concept, इसको आगे further move करने के लिए. Otherwise you have to think twice कि यार ये speed कैसे निकाली जाएगी. ठीक है, तो impulse is equal to change in momentum Now impulse is 2.4. For the ball, its initial momentum pi minus pf, pf minus, let me change in momentum, यहाँ पे कर लेते हैं इनिशियली इसको, change in momentum which is final minus initial for the ball. The mass is this. Hit होने के बाद their mass will have a velocity, लेकिन उसका initial momentum जो था वो ज़ीरो था because ball was at rest. फिर मैं इधर मैंने ये कर दिया है
it's a minus. So this is 2.4, mass is 0.056 into V, तो हमारे पास यहाँ पर V हो जाएगा 2.4 ओवर 0.056। तो ये आप आंसर यहाँ पर लिख देंगे, मैं इसको कर लेता हूँ 2.4 divided by 0.056, 42.8. I can write 49 as a round of value, लेकिन ब्रैकेट में मैं 40 no, it's a 42.8 ब्रैकेट में मैं 43 लिख देता हूँ। ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाता है। ठीक है, कहते हैं स्टेट द एनर्जी ट्रांसफर दैट टेक्स प्लेस। एनर्जी इज नॉट अवर टॉपिक टुडे। नॉर्मली इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है, काइनेटिक एनर्जी की बात आती है। व्हेन वी गो विद दिस टॉपिक वी विल टच दीज पार्ट्स। ओके, नाउ वी हैव another question. Underline the pair of quantities which must be multiplied together to calculate impulse. Now impulse is force into time. So this is the only, this part is applicable. Shows a collision between two blocks A and B on a smooth horizontal surface. इस ब्लॉक की स्पीड गिवन है, ये शायद रेस्ट पे है, कोलाइड करते हैं। आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, व्हेन दे स्टिक टुगेदर दे गेट अ कंबाइंड मास। लेट मी राइट दैट 2.4 and 1.2। ठीक है, दैट विल बी अ 3.6, दैट विल बी द मास 3.6। फाइन, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड v समवेयर। कहता है the momentum of the block A before collision. Now this is the block A. Momentum is mass time velocity. That is P is equal to mv. Mass is 2.4 into 3. That makes 7.2 newtons second. कहता है the velocity v is here. If you see the picture, this is the combined velocity. So momentum before collision is equal to momentum after collision. Momentum before collision is equal to momentum after collision. Now before collision is 7.2 plus 0, and then we have adding of mass plus 1.2 into v. So 7.2 over 3.6, that makes 2 meter per second. ये हमारे पास आंसर निकल आता है। मैस को अमूमन कुछ बच्चे ऐड करना भूल जाते हैं। यू हैव टू ऐड द मैस इन द केस ऑफ कंबाइंड वेलोसिटी। फाइन, नाउ impulse experienced by the block B during the collision, as I have expressed in today's lesson, कि आपको इन combined velocities में से किसी एक object का पूछा जा सकता है। Impulse for B. Now impulse is the change in momentum. If he talks about B only, so B has initial momentum 0, and then B has final momentum 1.2 is the mass, and the speed is recently calculated 2 meter per second. So we have final momentum of the B and initial momentum of the B, which is the change in momentum, that is called impulse. So we write down the formula for the impulse. That is change in momentum. Change in momentum. Now initial change in momentum means Pf minus Pi.
Final momentum is 1.2 is the mass and the speed is 2. Initial momentum is 1.2 is the mass, speed is 0. So that makes 2.4 Newton second is the impulse. So we are done. Alright. It says that suggests why the total kinetic energy of the block A and B after the collision is less than the kinetic energy of the block A before collision. क्योंकि ये because this collision is inelastic. I have explained in the previous video lesson okay, what is an inelastic collision. Oh, just give me a time. Okay. Just wait करें बेटा. मेरे साथ ये क्या हो गया यार. चलिए मैं इसको दोबारा इस दूसरी विंडो से ओपन कर लेता हूँ. Alright. जस्ट बेटा 1 मिनट होल्ड करें जरा. नीचे चली गई. जस्ट 1 मिनट होल्ड करें. मैं बेसिकली इधर से भूल गया कि इसके ऊपर कैसे किया जाता है. Impulse experienced by the block P during the collision. Okay. इसकी हमने वेलोसिटी निकाली थी 2 और इसका अपना है नहीं हम क्वेश्चन कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी का. काइनेटिक एनर्जी बेसिकली कहा था कि इन इलास्टिक कोलिजन ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन during inelastic collision kinetic energy initial is greater than kinetic energy final. Some energy is lost. This concept is explained in my lesson 3 recorded video. So और इसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है? इन अ परफेक्टली इनइलास्टिक द ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर. ही हैज़ नॉट गिवन एनी इन्फॉर्मेशन दैट कि एनर्जी कहाँ पे चली गई है, लेकिन एक सिंबल सामने नज़र आ रहा है कि दोनों मैसेज जो हैं वो आपस में कंबाइन हो गए, स्टिक टुगेदर हो गए. स्टिक टुगेदर इज़ द केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन. और इन इलास्टिक कोलिजन्स वो कोलिजन्स होती हैं जिनके बीच में एनर्जी लॉस होता है, यानी आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है जी. अब आ जाते हैं क्वेश्चन 4 के ऊपर.
स्टेट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, हमारा एनर्जी से एसोसिएटेड है, और वैसे भी वी कैन राइट इट डाउन एज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ mv². वी हैव नॉट लर्नड इट एज येट, इसको पेंडिंग कर दे. स्केलर है, मैं जस्ट एज मैं इस क्वेश्चन को फिलअप ही कर रहा हूँ. नाउ देयर आर 2 cars, वन विद अ पैसेंजर. टॉय कार्स हैं, जैसे डॉजिंग कार्स आप मुख्तलिफ जो आपकी जैसे ये जॉय लैंड है वहाँ पे जाके आप करते हैं और डॉजिंग कार्स एक दूसरे को टक्कर मारती हैं. एक एम्प्टी कार है विच इज़ 50 kg एंड दिस वन इज़ 200 kg इन 2.5. कहता है फॉर द कार विद पैसेंजर्स determines its momentum when it is traveling with 2.5. So 200 is the mass, momentum is mass into velocity, mass time velocity. Mass is 200, speed is 2.5. तो ये आपके पास 500 Newton second is the answer. Speed and direction of its motion immediately after the collision. आपने स्पीड भी इसकी निकालनी है और आफ्टर कोलिजन. तो आपको लिखना पड़ेगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. इनिशियल मोमेंटम में यू हैव 500 न्यूटन सेकेंड प्लस सेकेंड कार वाज एट रेस्ट, उसका मोमेंटम 0. फाइनल मोमेंटम में यू हैव मास 200 kg बट यू डोंट नो द वेलोसिटी, प्लस the stationary car which was 50 kg, it moves with speed 4, if I am not wrong, 4 meter per second. The empty car moves forward in the direction of 4 meter per second. Forward direction वही है जिसमें पीछे वाली गाड़ी ने आके इसको टक्कर लगाई है. So 500 200v प्लस 200, तो इक्वेशन बन जाती है 200v इज इक्वल टू 300, v इज इक्वल टू 3/2 विच इज 1.5. नाउ देर इज नो नेगेटिव साइन विद इट, इसके साथ पॉजिटिव साइन आया है, तो इसका मतलब है ये जिधर जा रही थी उसी डायरेक्शन में ही जाएगी. सो इट्स स्पीड इज 1.5 मीटर पर सेकेंड. डायरेक्शन क्या है? फॉरवर्ड, जिस तरफ ये पहले जा रही थी. अगर इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाता तो फिर हम कहते हैं कि ये रीबाउंड हो गई है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करनी शुरू हो गई है. ठीक है. कहता है फिक्स टू द फ्रंट एंड बैक कार्स आर लार्ज स्प्रिंग. इन कारों के आगे और पीछे दोनों तरफ लार्ज स्प्रिंग लगे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे सीट बेल्ट या एयर बैग्स का हमें कुशन प्रोवाइड करते हैं ना, इसके लिए ताकि इंजरीज वगैरह ना हो. व्हेन द कार कोलाइड द स्प्रिंग कॉम्प्रेस, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन. इसका नाम होता है इलास्टिक कोलिजन. ये मैंने लास्ट लेक्चर जिसका मैंने रेफरेंस दिया था कि इलास्टिक कोलिजन्स वो होती हैं जिनमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर सेम होती है. कहते हैं डिस्क्राइब द एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर एज द कार कोलाइड एंड देन सेपरेट. एनर्जी ट्रांसफर ये होगा कि जो कार मूव कर रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी. व्हेन इट हिट्स द स्प्रिंग और स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाता है तो वो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल ऑफ द स्प्रिंग जो है वो कार को दोबारा मूव कराता है, जिससे कहते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक अगेन. लेकिन इसकी आप फिक्र ना करें, जब हम एनर्जी पढ़ेंगे तो उसको हम इसमें जिक्र करेंगे. तो इनिशियल में लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड देन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज अगेन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, और गाड़ी फिर दोबारा मूव कर लेती है. ठीक है जी. ये हमारे 3 क्वेश्चन डन है जो मेरा आज का टारगेट था. ठीक है. तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेसन के अंदर कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे. आपको मैं कल असाइनमेंट भी, बल्कि ये वीडियो जब अपलोड होगी तो थर्सडे ही होगा,
तो थर्सडे को ही आपको शाम को जो है वो असाइनमेंट अपलोड हो जाएगी। असाइनमेंट आपको संडे से पहले पहले भेजनी है, सो दैट इट शुड बी चेक्ड एंड मार्क्ड। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आई जस्ट फिनिश माई वीडियो नाउ।